شروع کریں گے. اور آپ سب کے ذہن میں سب سے زیادہ ایشو جس کے اوپر ہے کہ برٹش گورنمنٹ نے بھی اس پہ بہت زیادہ بات کی ہے کہ انفورسمنٹ بہت زیادہ ہے ماں باپ کی. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایشین کمیونٹی جو اس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں اپنے بچوں سے, اس معاملے پہ وہ زیادہ دیر تک اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے اور اس کو وہ بہت سیریس نہیں ہیں. اس پروگرام کے آخر میں ہم نے ایک لکی ڈرا بھی رکھا ہے, تو پلیز اس میں آپ ضرور شامل ہوں. 3 انعامات ہیں, اس میں ایک کیمپورڈر ہے, ایک نوٹ پیڈ بک ہے اور کیپ رائٹنگ ہے, اسپیشلی لیڈیز کے لیے کافی اٹریکشن ہو. مولانا رضا حیدر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور کرائٹیریا آف سلیکشن ہے اب میں صلوات محمد و آل محمد. معزز حاضرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے ہمارے محترم برادر عزیز ڈاکٹر وسیع صاحب یہ بول رہے ہیں کہ مجھے صرف 15 منٹ دیے گئے ہیں اور 15 منٹ میں محل بھی ادا کروں اور کلام بھی پڑھ دوں. جی میں کوشش کرتا ہوں. میں نے کیونکہ محض سے مطالعہ گفتگو خاص موضوع تھا تو اس حوالے سے میں نے کچھ احادیث یہاں نقل کی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. شروع پر محمد کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين علم الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله لكن في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا النساء صدقات عند نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه عنهم مريعا. صدق الله العلي العظيم. مہر کی شرعی اور اسلامی حیثیت کے حوالے سے قرآن کریم کی یہ آیت واقعی دائر سورہ مبارکہ نساء کی 4ویں آیت ہے. بہت ہی بہترین دلیل ہے اور بہت بہترین پروف ہے کہ جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ عورتوں کی مہر خوشی خوشی ادا کر دو, عورتوں کی مہر خوشی خوشی ادا کر دو, نہ کہ تعاون کرہن, نہ کہ کراہت کے ساتھ مجبوری کا اظہار کرتے ہوئے, ناراضگی اور ناراحتی کا اظہار کرتے ہوئے. نہیں کہا کہ خوشی خوشی ادا کر دو. اور اگر وہ خوشی خوشی کچھ تمہیں چھوڑ دے, یعنی ان کی بھی خوشی شامل ہے, آپ کو دینے میں بھی خوشی کا اظہار کرنا ہے, وہ اگر اپنی خوشی اور اپنی رضا سے کچھ چھوڑ دے تو پھر ہنی مریا, پھر آپ مزے لے کر کھائیے, وہ خوشگوار موڈ میں کھائیے اس کو. لیکن شرط یہ ہے کہ انہوں نے خوشی سے معاف کر دی ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ نے شب اول گن پوائنٹ پہ معاف کرایا ہو تو بھئی یہ میرا ابا نے تو بات دیا تھا 5 لاکھ, لیکن اب میں نہیں دے سکتا ہوں زیادہ. ہو سکتا ہے گن پوائنٹ پہ ہو سکتا ہو کہ قدموں میں گر کے ہو, باقی دونوں صورتیں جائز نہیں ہے. وہ اپنی خوشی سے کہے کہ ہاں میں آپ سے خوش اور راضی, میں نے یہ معاف کیا تب تو ٹھیک ہے, ادروائز یہ ایسا کچھ سلسلہ نہیں ہے. میں اس متعلق قرآن کریم کے 4 سوروں میں, سورہ مبارکہ بقرہ میں, سورہ مبارکہ نساء میں, سورہ مبارکہ احقاف میں اور سورہ مبارکہ احزاب میں تفصیل سے تقریباً 6 مقامات پر مہر کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ مہر کی جس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شادی بس ایسی ایک رسم ہے جسے شاید ہمیں ادا نہیں کرنا ہے, جسے شاید کوئی اتنی امپورٹنس حاصل نہیں ہے. قرآن نے 4 سوروں میں 6 مقامات پر اس کا تذکرہ کیا ہے. اب اس کی ذرا اہمیت کا اندازہ بھی بات سے لگائیے. فرمایا جاتا ہے, حضور سرور کائنات کی حدیث مبارک ہے, آپ ارشاد فرماتے ہیں من ظلم امرأة فعند الله زان يقول الله عز وجل يوم القيامة عبدي زوجتك امتي على عهدي فلم توفي بعهدي وظلمت امتي فيؤخذ حسناته فيدفع اليها بقدر حقها. حدیث نبوی مہر نہ دینے والے کو زناکار قرار دے رہی ہے. اس سے اس کی اہمیت کے اندازہ لگائی کس طرح اہمیت ہے. طویل حدیث ہے جس کو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے تلاوت بھی کی اور
बाकी उसका तर्जुमा बयान कर रहा हूं कि फरमाया कि जो शख्स जुल्म रवा रखते हुए औरत का महर ना अदा करे वो खुदा के नजदीक जिनाकार है। रोज क़यामत खुदावंद आलम उससे इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे, मैंने अपनी कनीज से तेरी शादी की, मैंने अपनी कनीज से तेरी शादी की, लेकिन तूने मेरा अहद वफा नहीं किया। वो अहद कि जो महर की अदायगी के हवाले से था वो वफा नहीं किया। इसके बाद और तूने मेरी कनीज पर जुल्म किया, तो अब क्या होगा कि ये गुनाह मुझसे सरजद हो गया, तो अब क्या किया जाएगा? फरमाया कि इसके बाद मर्द की नेकियां औरत के हक के बराबर उससे ले ली जाएंगी, कि उसका जो कुछ महर था उसके जो भी एक अमाउंट बनती होगी, जो एक फिगर बनेगी, मर्द के अकाउंट में से वो नेकियां निकाल के औरत के अकाउंट में डाल दी जाएगी। और अगर फिर भी कुछ इतना ज्यादा खा लिया माशाल्लाह, तो बेचारा मर्द तो वैसे ही गरीब मुफलिस था, तो अब क्या किया जाए? नेकियां भी नहीं थी इतनी, वो नेकी के बारे से भी मुफलिस था बेचारा, और माल दौलत के हवाले से भी मुफलिस था। तो कहा कि फिर उसे अज़ाबे जहन्नुम में झोंक दिया जाएगा। और उसके बाद आखिरी जुमले ये कि क्योंकि अहद व पैमान के बारे में बास की जाएगी। जो अहद किया गया था अल्लाह तबारक व तआला से, ताबूत था, उसके उससे सवाल जवाब किया जाएगा। उसके बाद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हदीस, आपने महर न देने वाले को चोर करार दिया है। अब जरा गौर कर ले कौन कौन है। फरमाते कि अस्सुराक़ सलासा, चोर जो है वो 3 किस्म के हैं। मानिउ ज़कात, ज़कात में रुकावट डालने वाला, न देने वाला, वह मुस्तहिल महूर निसा, और औरतों के महर को हलाल समझने वाला अपने लिए, हलाल अपने समझने ये ना देना। और तीसरी चीज के वकज़ालिका मन इस्तताअ वलम यनवी अदाहु, और जो किसी से कर्ज ले ले और नियत उसकी ये हो कि इसे अदा नहीं करना है। ऐसे बहुत से अफराद होते हैं, लेते रहो, बहुत ही ईमान और दीन का इजहार करते हैं, और जब ले लेते हैं तो उसके बाद फिर ऐसे गायब होते हैं जैसे गधे के सबसे सींग गायब होती है। तीसरी हदीस मुझे भी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मरवी है, जहां महर को अदा न करने वाले को बदतरीन गुनहगार करार दिया गया है, या महर अदा न करना इंतहाई घिनौना जुर्म करार दिया गया है। आप इरशाद फरमाते हैं, अग़ज़ारुज़्ज़ुनूब सलासा, बदतरीन और घिनौने जुर्म जो है, गुनाह जो है, जुर्म गुनाह, वो 3 है। क्या है? क़त्ल अल-बहीमा व हबस महर अल-मरअा व मनअ अल-अजीर उजरहु, कि 3 चीजें जो है घिनौने गुनाह करार दिए गए हैं। सबसे पहला ये किसी को कत्ल कर देना, नंबर 2 औरत के महर को रोक लेना, नंबर 3 मजदूर की मजदूरी उसकी उजरत अदा ना करना। और आखिरी मंजिल पर हदीस इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम कि जहां आपने ये इज़हार फरमाया कि जो महर अदा नहीं करता है उसकी गुनाह माफ नहीं होंगे। आप इरशाद फरमाते हैं कि इन्नल्लाह ताला गाफ़िरु कुल्लि ज़म्बिन इल्ला मन जहदा महरा और कसबा अजीरन अजरुहु और बाअ रजुलन हुर्रा, कि परवरदिगार आलम तमाम गुनाहों को माफ कर देगा, लेकिन उस शख्स का गुनाह नहीं बख्शेगा जिसने औरत का महर रोका हुआ हो, नहीं दे रहा है। दूसरा वो कि जिसे मजदूर की उजरत गसब कर ली हो, और तीसरे वो जो किसी आजाद इंसान को बेच दे। इन हदीस से आपने अंदाजा लगाया होगा कि महर की अदायगी किस कदर अहम तरीन है। और हमारे यहाँ एक लतीफा ये है कि जब महर की तायीन की बात आती है कि महर मुअय्यन की जाए कितनी होगी, तो सबकी जबानों पर एक जुमला होता है, मौलाना साहब को शरई महर लिख दीजिए, मौलाना साहब शरई महर लिख दीजिए। पूरी शादी में सारी गैर शरई हरकतें सिर्फ एक महर के मामले में शरई काम करना चाहते हैं, इसलिए माल देना पड़ता है, पैसा जेब से जाने वाला होता है, सारे काम गैर शरई हो रहे हैं। एक महर के लिए वहां सब शरई महर, भाई शरई महर क्या होता है? अब कहीं से कोई बूढ़े बुजुर्गों से कुछ सुनाया, लोगों ने कहा वो महर फातमी दे दी, वहां महर फातमी लिख दीजिए। वो महर फातमी क्या है? महर फातमी जो हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का महर था, वो उनके जमाने 500 दिरहम था। जब अमीर मोमिनीन ने अपनी ज़रा मुबारक
बेची थी और उसके जरिए से उसका इंतजाम हुआ था। पहली बात तो ये है कि महर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसे इंसान ये समझे कि ये शौहर को इसलिए देनी है और औरत के लिए इसलिए तलब की जा रही है कि लोग समझते हैं कि शायद महर जो है वो एक खूंटा है, इस खूंटे में हमने दूल्हा को बांध लिया है, ये भाग ही नहीं सकता इससे निकल के। भागने वाले ऐसे भागते हैं कि नजर भी नहीं आते। महर आप 5 लाख रख लीजिए या 15 लाख रख लीजिए, अगर उसे भागना है तो बड़े खूबसूरत अंदाज से भाग लेता है और इंसान कांपता रह जाता है। तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। दूसरी चीज ये कि महर के हवाले से ये कहा जाता है कि शरई रकम, शरई महर बांधने जवान, शरई महर कोई नहीं है। अगर शरीयत ने किसी महर को वाक़ई फिक्स किया होता कि ये महर है तो वो शरई कहलाई जा सकती थी। अब अगर आप जाते जनाब सईदा के महर पर तो उस जमाने के 500 दिरहम थे, या तो उस जमाने के 500 दिरहम को आज के स्टर्लिंग पाउंड में आप कन्वर्ट करें तो मुझे नहीं पता वो कितने बनेंगे। कोई साहब यहाँ बैठे अगर बनी चेंजर वाले तो बता देंगे वो कितने बनते हैं जी। चले बाहर अच्छा चले 500 दिरहम या इतनी बड़ी रकम। हकीकत यह कि उलमा और फुक़हा ने महर के हवाले से इरशाद फरमाया है कि महर दोनों पार्टीज के स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए, जो दोनों का अपना स्टेटस है, ना इतनी कम हो कि वह मज़ाका नजर आए, मजाक नजर आए, ना इतनी ज्यादा हो कि किसी के लिए इंतहाई बोझ और बर्डन का बाइस बन जाए। और इसकी तारीफ मेरे पास एक ये हदीस है जनाब सरकार खत्म मर्तबत की, दुरूद पढ़ने के नाम पर आप इरशाद फरमाते कि अफ़ज़ल निसा उम्मती अज़बहुन्ना वजहन व अक़ल्लहुन्ना महरा। मेरी उम्मत की सबसे बेहतरीन औरत वो है जो बहुत हसीन हो। अब ऐसा नहीं कि अगर रोज चाहिए गयाना की तरह नहीं है तो नाराज हो जाए कि मौलाना ने मुझे तो काट ही दिया, नहीं ऐसा नहीं है। हसीन किरदार के एतबार से हसीन, रफ्तार के एतबार से हसीन, गुफ्तार के एतबार से हसीन, सिर्फ चमड़ी हसीन नहीं होनी चाहिए बल्कि इंसान का सरापा हसीन हो, वो हसीन है इस्लाम में। तो क्या बेहतरीन औरत वो है कि जो इंतहाई हसीन हो और इसका महर सबसे करीब हो, सबसे कम हो। तो मालूम ये हुआ कि महर की जो हमारे यहाँ जो चलती है, कोई कहता 5,000 कोई 10,000। मैंने एक निगाह पढ़ा कि कुछ अर्से पहले जहाँ 50,000 पाउंड महर था, 1 अगस्त बंगला था, 6 तोले सोना था। शौहर साहब बेचारे इस कदर लफ्ज़ में क्या इस्तेमाल करूँ कि जो अमूमन किया जाता है नहीं करूँगा, आपको पता चल जाएगा खुद ही। उन्होंने कहा मौलाना साहब लिख दीजिए। मैंने कहा लिख दीजिए, आपको देना ही है। हाँ मौलाना साहब लिख दीजिए आप। सर हमने क्या था, हम तो सिर्फ इस्तेमाल हुज्जत करते हैं, 3 दफा उसके बाद लिख ही देते हैं। उन्होंने लिखा दिया, लेकिन वो क्या चीज थी जनाब, क्या एक खातून वो भी माशाल्लाह डाइवोर्स थी, ये हजरत भी माशाल्लाह अच्छे खासी एज के थे, लेकिन इस कदर जुनून सवार था, क्या मजनून पे सवार हुआ होगा कि तो ठीक लिखते क्या 50,000 पाउंड, 1 अदद मकान और 6 तोला सोना। तो ये हिमाकतें हैं, ये बेवकूफियां हैं जो हमसे अंजाम पाती है ऐसे मौकों पर। तो इसे हमें एराज करना चाहिए, वो देखें कि ये दे सकता है या नहीं, और हम समझे कि वाकई कि हमारी भी इतनी हैसियत है। मैं गरीब झोपड़ी में रहने वाला इंसान और मैं किसी महर वाले इंसान की बराबर का महर तलब करूं, ये खुद एक हिमाकत है। अब महर के हवाले से, महर के बारे में कहा जाता है, फिक़ही मसला है कि इधर निकाह खत्म नहीं हुआ कि आधा महर वाजिब हो जाता है, आधा महर वाजिब हो जाता है। ये आधा क्यों कहा कि मुमकिन है कि घर पहुंचने से पहले ही अपने अपने घर पहुंच जाए, लिहाजा आधा तो बाहर देना पड़ता है। लेकिन अगर वाकई घर पहुंचे और शब अव्वल बहुत से खूबी अंजाम पा जाए तो फिर पूरा महर वाजिब हो जाता है। महर कुछ भी हो सकता है, महर कौन भी हो सकते हैं, दौलत भी हो सकता है, रुपया भी हो सकता है, महर कोई मकान भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, गाड़ी, महर कोई और भी है वो चीज की जिसकी अपनी कुछ कीमत हो, लेकिन इतनी कीमत ना मिलने रवाज पड़ी है। मैंने मुताले के दौरान किए 10 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए महर। यहाँ तो महर माशाल्लाह कोई सैंडल भी महर में रखा देता है,
एक सैंडल इसको मैंने देनी मौलाना साहब, उसमें मैं हो जाती हूँ, लेकिन बात ये मुनासिब चीज़ नहीं है, उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। ऐसी चीज़ें महल देनी भी नहीं चाहिए जो नुकसान दे। उसके बाद एक चीज़ खास जो मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ और शायद इसको मैं अपने तौर पर स्पेशल टिप करार दे रहा हूँ आज की इस मीटिंग के लिए और इस प्रोग्राम में, और वो ये है कि जिसको सुनना वो से बहुत से लोग नागवार समझते हैं, और वो ये है, मैं बताऊँ आपकी खिदमत में कि गुज़श्ता मेरे और हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा है, ये भी इसी राह पुरखार से गुजरते रहे हैं। गुज़श्ता तकरीबन 20 साल तक हो रहे हैं मुझे यहाँ पर। इस अरसे में मैंने जो निकाह पढ़े हैं, तलाक़ें उनसे 3 गुना ज़्यादा पढ़ी, तलाक़ें उनसे 3 गुना ज़्यादा पढ़ी। जो वजन मेरे निकाह की फाइल का है उससे 3 गुना भारी फाइल मेरी तलाक़ की। बात पे तलाक़ होती है, मामूली चीज़ों पे तलाक़ होती है, सिर्फ इस बात पे तलाक़ होती है कि हमें बच्चे नहीं चाहिए, कोई कहता है बच्चे चाहिए, इस बात पे तलाक़ होती है, और बहुत से रीज़न है जिनको मैं बयान करना बहुत इतना नहीं है मेरे ख्याल से, और मेरी मालूम करना भी शायद गुजर गई यानी। वो ये है, वो अहम तरीन मसला है जिससे हमारी पूरी कम्युनिटी दो चार है, और वो ये है कि जिसमें हमारे मोहम्मद साहब काफ़ी हेल्प करते हैं बहरहाल, लेकिन फिर भी यह हेल्प बड़ी मुश्किल से हो पाती है। और वो ये है कि जब खुशी के मौके पर, शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर अगर किसी के मुंह में लफ्ज़ तलाक़ आ जाता है तो सारे चिराग पा हो जाते हैं, सबको बुरा लगता है, ये क्या बदशगुनी है, ये क्या बड़े अल्फाज गलत अल्फाज की बात की है। लेकिन हकीकत ये अजीज़ों, उस जिनके घर में बेटियां हैं, मैं उसको तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जब अपनी बेटी का निकाह पढ़वाने लगे तो ये एक मुआहदा कर ले कि तलाक़ के लिए हक के वकालत जो है उनकी बेटी को हासिल होगा। उसका नतीजा क्या है? क्यों कि हमारे यहाँ तलाक़ जो है वो सिवाय शौहर के कोई और नहीं दे सकता, अनलेस कि फिर वो आप मुस्तहिद तक जाए, मर्जा तकलीफ तक आप कॉन्टेक्ट करें तो वो दे, और जो हर एक के बस की बात नहीं है। नतीजा ये होता है कि बहुत से अफराद तलाक़ नहीं देते हैं, लड़की लटकी रहती है और वो साल बीत जाते हैं, वो दूसरी शादी भी नहीं कर पाती, मर्द जो है वो आराम से ऐशो-इशरत करता है, दूसरी नहीं, तीसरी नहीं, चौथी, जितने भी उसके लिए मुमकिनात होती वो कर लेता है, लड़की जाती अकेली रहती है। अगर आप ये लिखा लें निकाह के मौके पे, कोई बुरी बात नहीं, इस्लामी चीज़ है, कुरान इसका तस्करा किया है, तो ये क्या है कि हमारी बेटी को हक होगा कि अगर किसी किस्म की ऊंच नीच हुई तो ये आपकी तरफ से वकील बनकर मतलब सीरत ला जाए कर सके। उसमें फिर ये कि अगर खुदा न खास्ता कोई अनबन होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, तो फिर अगर लड़का खुद से दे दे तो बहुत अच्छी बात, और नहीं देता है तो फिर लड़की खुद हासिल कर लेने में आजाद होगी, अदरवाइज उसको बहुत सी ट्रबल्स रहती हैं, परेशानी की शिकार रहती है। आखिरी मौजू और वो ये जिससे मुझे कहा जाता है कि कैसे किससे शादी करें या कैसे करें, उस सिलसिले में तकरीर तो बहुत लंबी हो सकती है, लिहाजा मैंने मुख्तसर वक्त आपको देने के लिए अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का एक समझे हिदायत और दुआ जो है वो चूज की है। दुआ पढ़े का नाम ये आका उस्ताद हुसैन अंसारियान की किताब से मैं नकल कर रहा हूँ। ये दुआ कहा जाता है कि हर खुदा से मुनाजात, नज़र रोज़ानी और दुआ करने को इबादत करार किया गया है। ज़्यादा बेहतर है कि हम बिस्तरी से पहले बारगाह खुदा में दुआ करें कि इस वक्त की दुआ और कबूलियत से, क्योंकि इस वक्त की दुआ कबूलियत से नज़दीक होती है और जायज़ आरज़ुओं को पूरा होने के लिए ज़मीन हमवार होती है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि जो शख्स शादी करने का इरादा करे उसे चाहिए कि 2 रकत नमाज बचा लाए। यहाँ न शादी से पहले कोई नमाज याद रहती, न शादी के बाद याद रहती, शादी के मौके कैसे याद आएगी, लेकिन बाहर अगर याद आ जाए खुदा न खास्ता तो फिर आप 2 रकत नमाज पढ़ें, उसके बाद सूरह हमद, सूरह यासीन की तिलावत करें और उसके बाद खुदा की हमदुसना करते हुए खड़े होकर दुआ पढ़ें। क्या अब ये अलग बात है कि आप ये देख लीजिएगा कि आपकी ज़ौजा का प्रेशर कितना है, उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त कितनी है कि कहती लंबी दुआ बर्दाश्त कर लेगी या नहीं। बहरहाल दुआ ये कि अल्लाहुम्मा ज़ुक़नी ज़ौजतन सालिहा वदूदन वदूदा शकूरा ख़ुनूआ वयूरा इन अहसनतु शकरतु। अब ये मैं इसको और शाम करता हूँ, सिर्फ तर्जुमा सुनाता हूँ। फरमाते कि अल्लाह मुझे शाइस्ता व शरीफ
बामोहब्बत बच्चे पैदा करने वाली, शुक्रगुजार, कनात पसंद और बागैरत बीवी अता फरमा। किसी को लाइन में नहीं कहना कि जब मैं इसके साथ नेकी से पेश आऊं तो मेरा शुक्रिया बजा लाए। अब देखिए कैसी लड़की आपको चूज करनी है, किसका इंतखाब करना है, और अगर इसके बारे में कोई गलती हो जाए तो वो दरगुजर करे, और अगर मैं तुझे याद करूं तो वो मेरी मदद करे। तुझे याद करूं क्या मतलब है? अब अदारे चले जा रहे हैं, मजलिस का टाइम हो गया, मजलिस अदारे में प्रोग्राम है, आपने चलने के लिए जैसे कोट उठाया, कहाँ चले? अदारे जा रहे हैं, तो बस बैठे घर में। अदारे अभी 2.25 महीने जाके मजा नहीं, दिल नहीं भरा आपका, और भी घरे बहुत से काम सब जरफ ने आपको रोक दिया जाने से। तो कोई ऐसी हो कि जो नहीं तशवीर दिलाए, ऐसी भी ना हो क्योंकि भाई चाहे तो घर में कुछ सुकून हो, ऐसा माहौल भी ना पैदा कर ले घर में तो आपको भेजने में मजबूर हो बेचारे, और ऐसे भी ना बने कि वो आपको रोकने में मजबूर हो जाए। तो फरमाया कि जब मैं तेरी इबादत करूं तो मुझे मेरी मदद करे, और अगर तुझसे गाफिल हो जाऊं तो मुझे याद दिलाए। नमाज के लिए ना उठूं तो मुझे उठा दे, उठिए फजर का वक्त हो गया है, नमाज पता होने वाली, नमाज पढ़िए। और अगर मैं कहीं चला जाऊं तो मेरे हक और अपनी आबरू की हिफाजत करे। मैं अगर नहीं हूं वतन में, बाहर हूं शहर से, तो मेरे हक की भी हिफाजत करे, मेरी आबरू की हिफाजत करे। कोई बात कहो तो फरमा बरदारी करे, इनकार ना करे। यहाँ ये होता है खाना मांगा, वहां जाए किचन में रखा हुआ है, गर्म कर ले ओवन के अंदर, थका हमारा बेचारा आया सारा दिन मेहनत करके खाना मांग रहा है, माशाल्लाह इतना गंदा मजबूत है, तो किचन में रखा जाके निकाल दे। हमने कहा था रात को 11 बजे वापस आए, आ जाते जल्दी तो हम बना के दे भी देते। तो ऐसी सुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आकृति नहीं है जनाब, लेकिन आप किसी गलतफहमी में शिकार हो जाए, और अगर इससे नाराज हो जाओ तो मुझे खुश करे, अगर मैं उससे नाराज हो जाऊं तो खुश करे। यहाँ पे उधर नाराज होते हो जाओ तो उधर नाराज था, उधर नाराज, लिफ्ट नहीं हो रही, लिहाजा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद फरमाया कि ऐ जलाल व करम वाले, मुझे मेरी मतलूबा चीजें आता फरमा, क्योंकि मैंने तेरे सामने हाथ फैलाया, ये दुआ कर रहे हैं, और तेरी बारगाह से मुझे वही मिलेगा जो तूने मेरे लिए मुकद्दर किया है। इसके बाद मेरे मौलवी ने फरमाया कि जो शख्स भी शादी के वक्त ये अमल अंजाम देगा, खुदा उसकी दुआओं को जरूर कबूल करेगा। कौन कह रहा है? हल्लाल मुश्किलात मौलाए कायनात फरमा रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन ये दर्ज दे रहे हैं। अब आप देखिए कि इसके अंदर छोटे से खुतबे में तकरीबन वो सारी बातें मौजूद है जो इंसान को तलाश करनी चाहिए। मसला ये है कि मैं इसका तकरीबन 17-18 साल से ये काम भी कोशिश करता हूँ करूँ, किसी हद तक खिदमत करूँ रिश्तों के हवाले से। उसमें ये है कि सौ मेरे पास ढेर सारे रिश्ते हैं, लड़कों के भी है, लड़कियों के भी है। लड़कियां सारी ब्रिटिश है, लड़के सारे नॉन ब्रिटिश है। मुझे नहीं पता कि ब्रिटिश लड़के शादियां नहीं करते हैं, क्या होता है। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि बेचारे जो नॉन ब्रिटिश है, जो विजिटर है, जो स्टूडेंट्स है, या और थोड़ी सी वर्ष कैफियत है कि अजाइलम सीकर है, उन्हें कोई कंसीडर करने को तैयार ही नहीं होता। मेरे जो फार्म है उसमें से लिखा जाता बाकायदा, मौलाना सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश बॉर्न, बाय बर्थ ब्रिटिश, ये जुमले बाकायदा मेरे फार्म में लिखे भेजती हैं लड़कियां। ब्रिटिश बॉर्न नहीं है, बाय बर्थ ब्रिटिश नहीं है, लेकिन आप ये देखिए क्या खानदानी है या नहीं है, पढ़ा लिखा है या नहीं है, अच्छे शरीफ घराने से है या नहीं है। अगर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं तो फिर मैं समझता हूं कि हमें नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी और तरफ भी ज्यादा गौर करें। 38-38 साल, 35-35 साल, 37-37 साल की लड़कियां मौजूद हमारी कम्युनिटी में, अभी तक शादी उनकी नहीं हुई। लेकिन नॉन ब्रिटिश अगर उनको रेफर किया जाए तो वो बिल्कुल यकसर इनकार कर दिया जाता। और ऐसे ब्रिटिश अफराद कि जो नहीं मानो, दुरुस्त है कि शादी हमारी टूटती इसी वजह से है शायद कि कुछ जोड़ नहीं बनता है। जो ब्रिटिश लड़कियां हैं वो नॉन ब्रिटिश लड़कों के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। उनके अपने मिजाज होते हैं सुबह पराठा खाने के, इनका अपना मिजाज होता है सैंडविच खाने का, उनका अपना मिजाज होता है हलवा पूरी खाने का, इनका अपना मिजाज होता है एक सेब और केला खाने का। तो जहाँ एक सेब और केले में सुबह होती हो, वो पराठे वाला कैसे उसके साथ निभा कर सकता है। ऐसी भी डिवोर्स की नौबत आई है मेरे पास कि मौलाना वो रोजाना जहाँ पराठा पकाने के लिए कहते हैं, तो मेरी बेटी जो जॉब भी करती है पराठा ही पकाई कैसे हो सकता है। ज्यादा ये मुमकिन नहीं है, अब इसका इख्तिताम नहीं होना चाहिए। तो शायद हम
इफरात और तफरीक का शिकार है। अज़ीज़ान मोहतरम, कोशिश करें, क्योंकि बहुत से ऐसे भी फैमिलीज हैं कि जिन्होंने लड़कों ने जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं कि जिन्होंने यकीनन क्या कहते हैं दुख दिया है, हर्ट किया है यहाँ की फैमिलीज को, तो उससे वो भी बेचारे बहुत ही एहतियात करते हैं। लेकिन पांचों में तो बराबर नहीं होती, सारे लड़के तो ऐसे नहीं हो सकते हैं ना, और कई सारी लड़कियां ऐसी हो सकती हैं। लिहाजा इस मामले में हमें थोड़ा बहुत कुशादा दिली से और कुशादा ज़हनी से बात करनी चाहिए। मेरे यहाँ के पाकिस्तानी लोग बहुत खुश हो रहे हैं माशाल्लाह। सलाम अलैकुम। बहुत से वालिदैन ये समझते हैं महर अगर ज्यादा होगा तो बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो गया, जबकि ऐसा नहीं। इस बारे में कुछ फरमाएं। महर इस मुल्क की करेंसी में होना चाहिए या कोई सी भी करेंसी में हो? दो सवाल है। पहला सवाल ये कि महर इसलिए ज्यादा होता है कि बेटी का मुस्तकबिल महफूज हो। बेटी का मुस्तकबिल तो उस वक्त महफूज हो सकता है कि अगर महर एट द स्पॉट अदा कर दिया जाए, फौरन दे दिया जाए, या मसलन कोई इतना शरीफ इंसान हो कुछ देने के लिए तैयार हो। अदरवाइज ऐसी बहुत सी शादियां हुई हैं अज़ीज़ान मोहतरम, और जो मेरे एक्सपीरियंस में है कि महर जितना भी रखा गया है, जिसको नहीं देना था वो ऐसा गायब हुआ है कि आप ढूंढते रह जाए, कोई नजर ही नहीं आता है कहाँ गायब हुआ है। या तलाक नहीं देता है वो, महर कहाँ से देगा, भाग जाता है। कम से कम इतना ही हमदर्दी मोहब्बत कर दे, इतनी हमदर्दी, इतना रहम खा ले कि तलाक दे दे। तलाक नहीं देते हैं, गायब हो जाते हैं, अपने घर आबाद कर लेते हैं, तो फिर महर कहाँ से अदा करेगा? तो ये सोचना कि महर इसलिए ज्यादा रखिए, शायद कोई एक आध बेचारा शिकारपुर से आया हो ऐसा, तो समझता हूँ कि क्योंकि महर मेरी ज्यादा इसलिए नहीं भाग सकता हूँ, अदरवाइज कोई ऐसा नहीं। तो भारत दूसरी कि महर के बारे में ये कि जहाँ शादी हो वहां पर महर रखे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप शादी करें लंदन में और महर रखिए आप तुमान में, तो पता चला कि 10 पाउंड की आपकी महर अदा हो जाएगी। Some people flirt before marriage, and they say we will leave this habit after marriage. This is a very common now. Please give your view to stop this. भैया मसला ये कि यहाँ जो एजुकेशन का सिस्टम है, वो एजुकेशन है, छोटी छोटी सी उम्र है, 16, 17 साल के बच्चे हैं, दोस्त हैं, और शायद ही कोई ऐसा हो जो इस सवाब से महरूम हो कि उसका कोई दोस्त ना हो। जी और बीबी दोनों एक दूसरे के साथ माशाल्लाह दोस्ती का निभाव करते हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक सुना है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो अपने बेटों को या अपनी बेटियों को तशवीक दिलाते हैं, मसलन उन्हें प्रमोट करते हैं कि भाई तुम अपना कोई दोस्त को रखो, अपना तो आपको दोस्त होना चाहिए। दोस्त मैं भी कहता हूँ अपने बेटों से कि तुम्हारा कोई दोस्त होना चाहिए, लेकिन बेटे का दोस्त कोई लड़का ही होना चाहिए, कोई बॉय होना चाहिए। किसी लड़की को उसको दोस्त बनाने के लिए मत अप्रिशिएट करें, ना लड़की को किसी बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कहें। ये दुरुस्त है कि बहुत से लोग करते हैं ऐसी हरकतें, अलबत्ता क्योंकि समा टाइम तो ऐसा भी होता है कि कुछ पहले के सिलसिले इस कदर मजबूत और मौका हो जाते हैं कि वो शादी के बाद भी इसमें कोई क्रेक नहीं आता है। होता है कि शादी हो जाती है मजबूरन खानदान में और वालिदैन के कहने के ऊपर या किसी मजबूरी के तहत, लेकिन हमदर्दियाँ और मोहब्बतें वहीं वाबस्ता होती हैं, डोरियाँ वहीं से हिल रही होती हैं, धड़कनें वहीं की होती हैं। लिहाजा ऐसी सूरत में तो क्लियर कट इंसान को कह देना चाहिए, फेयर बन जाना चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ, और इवन ये कि उस बच्ची के साथ जिसको हम अपने घर ला रहे हैं उसके साथ फेयर हो जाए, उस लड़की को लड़के के साथ फेयर हो जाना चाहिए कि मेरे कहीं और फेयर चल रहे हैं, मैं आपसे फेयर होकर कह रही हूँ कि आप मेरे रास्ते से हट जाएंगे, क्यों अपने आप को आप अंधे कुएं में ढकेल रहे हैं। तो ये बेहतरीन इलाज हो सकता है। अदरवाइज इस जहाँ पर सवाल है इसमें ऐसी बात मुझे नहीं महसूस हो रही कि मैं इसका कोई और हल बता सकूं। तो बहरहाल यही मेरी दरख्वास्त थी और गुफ्तगू थी, और उम्मीद है कि मैंने आबाद की समा खराशी की है, मैं इसके लिए माफ़ी ख्वाह हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगले स्पीकर पे जाने से पहले हम 10 मिनट का ब्रेक करेंगे। आप सबके लिए रिफ्रेशमेंट का सामान नीचे है। 10 मिनट का ब्रेक।